Okay. Namaste, everybody. Welcome to the third episode of MG Live on Business. It's a pleasure to have you here this very evening. Like I shared in the previous two episodes, this is the live sessions on the business side. We have been taking live sessions on live side in Happy Minds every Saturday morning at 7, and there were suggestions. There were people who wanted us to speak on business, and I didn't want to mix business with live sessions. So here we have started another series called MG Live on Business. And so you can shoot your questions on business, which I may answer as we go on today, or I may take those questions in the coming week, because once a week we will have MG Live on Business. So I will see your questions and maybe I'll answer it today, or maybe I can answer it next week. So previous two episodes which we had were on the people side, and thank you so much for the wonderful feedback response which you all gave over a period of time. Yes, this channel is new. We are getting traction, we are getting engagement slowly and slowly. Do spread the word around, do share with your friends. They can like and they can subscribe to the channel so that they get the notifications in time to be there in the live session. What happens is you can ask questions, you can be there, we can have it interactive. Otherwise रिकॉर्डिंग तो रहती ही है, तो रिकॉर्डिंग रहती है तो फिर आपसे रिकॉर्डिंग देख पाते हो, सो आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते हो, आप फिर से सवाल नहीं पूछ पाओगे. Good to have you, Hanumant, Tarun, Arsu. Wonderful to have you. Namaste, everybody. Namaste. So from the last few sessions, any questions you have? Because today I'm going to speak on leadership, and it's my favorite subject. So it's a subject which I've been speaking passionately about for the last many years. But before I move on, jump into the subject, कोई question किसी का है तो आप मेरे से पूछ सकते हो in relation to the subjects which we have covered in the previous episodes. And if you have not watched the previous episodes, मेरा request है आपसे कि आप वो देखिए, because they were powerful episodes on the human side of business. And I always say that business skills are actually people skills. So if you can manage people, if you can handle people well, if you can lead people well, then you can also do your business well. So उसी का एक series है that we are talking about, the leadership. I think it will go on for a few weeks because leadership is such a huge subject. The more we learn about it, the less it is. To start the entire session on leadership, let me just give you some idea about the impact of leadership. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना भी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितने भी you are advanced on the technological side, you might have the best of strategies, the most thoughtful of strategies, you might have tactical execution की execution बहुत बढ़िया हो रहा या बढ़िया होने की आपकी planning पूरी अच्छी हुई है. But if your leadership is weak, if your leadership is ineffective, then that ineffective leadership will overpower, will shadow everything else. That is the power of leadership. कि सब कुछ होने के बावजूद भी अगर लीडरशिप अच्छी नहीं है तो सब कुछ के होने का भी कोई मायने नहीं होता. And that is why many organizations, they fail to reach the level of greatness. They survive, but they don't thrive. They just survive. वो सिर्फ survive होती हैं, मरती नहीं हैं, जिंदा रहती हैं, लेकिन वो एक greatness के मुकाम पे नहीं पहुंचती, because somewhere the leadership was ineffective, the leadership was weak. और इसलिए जो बोलते हैं ना कि battles जो होती हैं, तो जो soldiers होते हैं, उनकी ताकत या उनकी हुनर या उनकी काबिलियत या उनकी strategic planning पे तो होती है, लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि जो उनको लीड करता है लीडर, उसकी काबिलियत क्या है. तो जो लीड करता है अगर वो काबिल नहीं है तो नीचे कितने भी बढ़िया सोल्जर्स होने दो, कितनी भी काबिलियत होने दो, that will not make sense. And I don't want to point out, but you can look around you, whether it be an organization, whether it be a political party around you or in the country, you will see that if there is effective leadership, that party, that organization will move ahead in a very powerful way. और जिस पार्टी में, जिस पॉलिटिकल पार्टी में या जिस ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप बड़ी वीक होती है, you will see that organization crumbling, right, and falling apart. And I need not give you examples on that on the political front, what's happening. So with this as a clarity that the organizations thrive and survive based on the leadership quotient of the organization, let's understand another aspect of it.
कि जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना ही ज्यादा इम्पैक्ट लीडरशिप का उस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बिकॉज लीडरशिप जो है ना वो डेली इंटरेक्ट कर रहा होता है, लीडरशिप जो है वो डेली इन्वॉल्व होता है विद हिज टीम, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, यू डोंट हैव मेनी हायरार्की लेवल्स कि जो ऊपर का लीडर है उसका नीचे के लोगों तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। वो जो ऊपर की लीडरशिप है और नीचे के जो लोग हैं उसमें एक या दो लेयर की ही हायरार्की होती है इन स्मॉल और मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसलिए लीडर का इम्पैक्ट, लीडर का असर बहुत ज्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशंस में जो छोटी होती हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है ये ध्यान रखना कि छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में बड़ी पावरफुल लीडरशिप होनी चाहिए। और एक लीडरशिप का एक और इफेक्ट होता है विच इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि हाउ लीडरशिप हैज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑन द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोर सो इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया कि जो टॉप में जो इंसान बैठा हुआ है उसकी जो लीडरशिप काबिलियत है, उसका जो एक टेम्पो सेट किया हुआ है, उसका एक जो दिशा सेट गई करी गई है, उसी का उसका जो एक एक तरीका सेट किया गया है, दैट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट, मींस एवरीबॉडी काइंड ऑफ फॉलोज दैट, बिकॉज लोग उसी को देख रहे हैं, लोग उसी को समझ रहे हैं, लोग उसी को काइंड ऑफ दे आर लुकिंग अप टू दिस पर्सन। तो उसकी जो भी स्टाइल होगी, जो भी उसका तरीका होगा लीडरशिप का, इफेक्टिव हो, इनइफेक्टिव हो, अच्छा हो, बुरा हो, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गो डाउन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो मैं आपको सिर्फ इम्पैक्ट बता रहा हूं कि एक लीडरशिप का क्या हो सकता है एक स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री में। सो no matter how strong you are technology wise, no matter how strong you are strategy wise, no matter how strong you are execution wise, if your leadership is weak, if your leadership is ineffective, बाकी सब तरह का तरह रह जाएगा। सो अगर अच्छी लीडरशिप है तो ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोग्रेस, अगर वीक लीडरशिप है तो जैसे होता है ना कि आप कंबल जो पानी में गीला होता है जब आप उसको डाल देते हो अपने या आपके कंधे पे आ जाता है, दैट इज व्हाट हैपेंस टू ऑर्गेनाइजेशन जहां पर लीडरशिप वीक होती है। ऑर्गेनाइजेशन के कंधे झुक जाते हैं उस बोझ पे जो एक्चुअली बोझ नहीं होना चाहिए था। बट इनइफेक्टिव लीडरशिप इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज। तो ये हल्का सा बिल्डअप है फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट लीडरशिप इज इन अ स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज। हमने इसको बहुत लाइटली लिया हुआ है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को जब मैं मिलता हूं, बात करता हूं ना, आई ऑलवेज want to understand why they have not worked on themselves, why they have not taken this subject of leadership a lot more with sincerity. उसमें इन्होंने उसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं दिखाया, दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई इसमें, why they are not interested in this subject called leadership. और फिर जब मैं जितना मैं इसमें सोचता हूं तो उतना मुझे समझ में आता है कि शायद जाने अनजाने में इन्होंने सोच लिया है कि लीडरशिप ऐसा डेवलप होते रहेगा अपने आप, अग्रीड होता रहेगा, लेकिन एक दिशाहीन लीडरशिप डेवलप जब होता है तो फिर वो लीडरशिप नहीं होता, वो बॉसगिरी हो जाती है। You end up becoming boss at a higher level, but you don't end up becoming better leaders as you go on. तो ये लीडरशिप को समझना और इस लीडरशिप पे काम करते रहना बड़ा जरूरी है, जैसे आप अपने काम पे काम करते हैं। बिकॉज as every profile in the organization has a responsibility, this profile of yours, जहां पर आप सीईओ हैं, जहां पर आप एमडी हैं, जहां पर आप हेड हैं किसी डिपार्टमेंट के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वहां पर भी आपकी प्रोफाइल जो है उसका मेजर काम जो है वो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो आप एंड मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योरसेल्फ इनटू बिकमिंग अ बेटर लीडर। मुझे याद है विंस्टन चर्चिल को मैंने पढ़ा था बहुत पहले, तो उन्होंने कहा कि यू नो अ लीडर इज द ट्रू लीडरशिप इज रिफ्लेक्टेड थ्रू योर सिंसेरिटी एंड प्योरिटी, कि हाउ सिंसियर एंड हाउ प्योर यू आर, कि आपके अंदर जो इमोशंस है ना, इफ दोज इमोशंस आर नॉट वेरी स्ट्रांग, यू विल नेवर बी एबल टू स्वे अदर पीपल विद इमोशंस। बिकॉज आपको इंस्पायर करना ना लोगों को कि वो अच्छा काम करें, वो बेहतर काम करें, लेकिन जब आपके अंदर ही वो इमोशन नहीं है तो आप वो इमोशन कैसे पास करोगे? यू वांट टू मूव पीपल टू टीयर्स, बट जब आपकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं तो आप किसी और की आंखों में आंसू कैसे ला सकते? यू वांट टू कन्विंस पीपल अराउंड, बट इफ यू आर योरसेल्फ नॉट कन्विंस्ड फॉर द कॉज फॉर विच यू वांट पीपल टू स्टैंड अप फॉर, तो कैसे आप उनको कन्विंस कर पाओगे जब आप खुद ही कन्विंस नहीं हो? So everything starts with self. That's what leadership is all about. So the first take on leadership for all of you. Lovely to have all of you here. Namaste, everybody.
If some of you joined in late, namaste everybody. Welcome to MG Live on Business. Stay tuned and stay connected with me, and do post your questions if you have any as I address you all on leadership. Be there with me on that. So the first thing which I want you to connect with on leadership side is that leadership is a great responsibility. ये चीज को आप अपने जहन में जितना डाल लें उतना अच्छा है. It is not a matter of privilege. It is not a matter of any kind of benefits which you will get. It's not something which you can brag about, yeah, boast about. It is something which you have to understand. लीडरशिप हैज टू बी अंडरस्टूड. लीडरशिप के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. उसकी जिम्मेदारी की डेप्थ को समझना बड़ा जरूरी है. तो जब मिलता हूं ना लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस में, सो आई मीट दी सीनियर वीपी लेवल पीपल बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो मुझे मिलाते हैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से. दे मेक मी मीट देयर वाइस प्रेसिडेंट्स एंड देयर डीजीएम्स एंड जीएम्स, एंड I want to understand by talking to them. मैं सटली समझना चाहता हूं कि इनकी सोच इनके काम के बारे में क्या है, जो इनकी प्रोफाइल है, जो इनकी पोजीशन है, उसके बारे में इनकी सोच क्या है. And sometimes I get beautiful answers, but there's times when I'm amazed कि इनको इस काम का भारीपन समझ नहीं आ रहा है. उनको अपने पोजीशन का की जिम्मेदारी समझ नहीं आ रही है. उनको लगता है कि ये जीएम बन जाना या ये वीपी बन जाना या फिर कंपनी का सीईओ बन जाना, it's a matter of great pride and great privilege. But ऐसा नहीं है. Leadership is a matter of great responsibility. तो अगर आप टीम मेंबर हो और आप अगर आप एक हायर प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर अपनी कंपनी में यू एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन, सो ask the boss. Apart from asking the perks, apart from asking the salary, apart from asking what benefits you will get, apart from asking कि सर डेजिग्नेशन क्या मिलेगा, इन सब चीजों से के अलावा एक चीज पूछो कि सर मुझे बताओ मेरी जिम्मेदारी क्या है. Understand the responsibility. And very seldom I've understood this. I've seen this. Very seldom I've seen people, even while taking interviews, मैंने बहुत कम बार देखा कि लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, आप मुझे बताओ ना मेरी जिम्मेदारी क्या है. I want to understand, because I want to carry out those responsibilities to the best of my abilities. ये सेंटेंस बहुत कम लोगों ने बोला है, but they would want to know कि डेजिग्नेशन क्या दिया जाएगा. They want to know कि उनके टाइमिंग्स क्या है. They would like to know उनके पर्क्स क्या है, उनका प्रमोशन आगे कैसे हो सकता है, उनका ग्रोथ पाथ क्या हो सकता है. But very seldom people ask मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. So leadership is all about responsibility. The more you have responsibility, the more you can handle responsibility, the more you can execute responsibility. तीन चीज याद रखो. The more you can have responsibility, the more you can handle responsibility, and the more you can execute the responsibility. It's a sign of leadership. It's a beautiful sign of leadership. आप अपने आप से पूछो ना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ऐसा इंसान आपके नीचे है जो और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है. ध्यान से सुनो मेरी बात को. आपके नीचे कोई ऐसा इंसान है जो आपके नीचे काम करता है, वो और रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है. He wants to have responsibility. He is the one who can handle responsibility. He is the one who can execute that responsibility. तो उसको उसमें वो खोता नहीं है, उसमें वो मतलब मरता नहीं है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर. He doesn't get overwhelmed by the responsibility, and he's able to execute the responsibility. Would you not want that person? Would you not want that person to stay with you for long? Would you ever want that person to leave the organization? Nahi na? So that is what is leadership all about. So if you can have such people at the top level in the organization, then you are leadership-wise rich. So you got to ask yourself this question: am I rich in leadership or am I poor in leadership? You can be rich in turnover, you can be rich in terms of technology, but if you're poor in leadership, then trust me, बहुत लंबे समय तक हम आगे भाग नहीं सकते. अगर लंबे समय तक भागना है तो लीडरशिप जो है ना, उसका क्वोशंट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. You should be a leadership factory. And every time I speak of this concept called leadership factory,
I have one example which I can talk about again and again and again is of Jack Welch. कि जब वो सीईओ बने जीई के 1980 में, और जब वो सीईओ से बाहर निकले 2001 और 2 के आसपास, वो 20 सालों में उन्होंने जीई को एक लीडरशिप फैक्ट्री बना दिया, where people staying in that company, they have no option, but to emerge as leaders. तो अगर किसी को लीडर बनना होता है ना, तो वो जी में ज्वाइन कर लेता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के बाद जब वो निकलता है 7 साल बाद, 10 साल बाद, 14 साल बाद, तो वो लीडर बन के निकलता है, बिकॉज दैट्स द मैकेनिज्म दे हैव पुट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको पूछना है कि क्या आपकी कंपनी में ऐसा कुछ सिस्टम है कि कोई ज्वाइन करता है आपकी कंपनी में और वो लीडर बन के निकलता है बाहर, ये लीडर बन ही जाएगा, ऐसा कुछ है? या फिर वो आम आदमी बन के आया और आम आदमी बन के निकल जाता है एक दिन? That's where you have to ask yourself this very question. So मैंने अभी तो आपसे 2-3 बातें करी. एक मैंने बात करी that leadership is a very important aspect, more so for small and medium scale industries. मैंने आपसे ये बात करी कि आपकी अगर छोटी कंपनी में लीडरशिप वीक है तो आप कभी भी ग्रेटनेस वाले लेवल पे पहुंच नहीं पाएंगे. सेकंड, मैंने आपसे बात करी कि ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कि कैसे अगर लीडर जो है वो उसकी जो भी आदतें हैं, जो भी काम करने के तरीके हैं, जो भी उसका लीडरशिप स्टाइल है, इट काइंड ऑफ गोज डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड हैज अ मल्टीप्लाइंग इफेक्ट ऑन एवरीबॉडी, वेदर गुड और बैड. तीसरा, मैंने आपसे कहा कि समवेयर इन लीडरशिप साइड यू हैव टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, सिंसियर एंड अ प्योर अप्रोच, कि जो इमोशन आप चाह रहे हैं दूसरों के अंदर, क्या आपके अंदर वो इमोशन है? अगर आप किसी और को एकदम ऐसा टच करना चाहते हैं, उसका दिल को छूना चाहते हैं, तो क्या आपका पहले दिल छुआ है कि नहीं छुआ है? आप किसी को कन्विंस करना चाहते हैं कि मेरे इस कॉज के लिए लड़ो, तो क्या उस कॉज के लिए आप उससे 10 गुना ज्यादा कन्विंस्ड हैं? एंड दैट इज द काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट इट इज फॉर अ लीडरशिप पोजीशन. एंड देन फ्रॉम देयर आई वेंट ऑन टू शेयर विद यू दैट लीडरशिप इज नॉट अ प्रिविलेज. ये कोई आन बान शान की बात नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो यहां तक हम लोग आए लीडरशिप के बारे में समझने में. Okay, I'll answer this question later on. Can you tell us about how do we change our leadership? Okay, let me just give you some more clarity on the leadership side. तो अभी हम यहां आए, यहां से अगर हम आगे बढ़ें और समझें कि देखिए लीडरशिप के अगर हम और डेप्थ में जाएं तो 2 चीज समझ में आएंगी. एक है कि लीडरशिप का फंक्शन क्या है, लीडरशिप का काम क्या है, और हम लीडरशिप को एग्जीक्यूट कैसे करें. 2 चीज को समझते हैं कि लीडरशिप का काम क्या है, राइट? और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि लीडरशिप की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, क्या हो सकती है. जो मेरे को समझ में आई है मैं आपको बताऊंगा. तो लीडरशिप का काम क्या, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ लीडरशिप. ना दिस the more in depth you understand this, the more you will be able to execute leadership. तो लीडरशिप का काम क्या है? तो लीडरशिप का काम है कि वो जो है ना एक बड़े अच्छे से विजन को क्लैरिटी के साथ पेश करता है. वो एक उसका काम है कि वो विजन को बताए, वो एक दिशा बताए अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, कि दिस इज द विजन, दिस इज द कॉज, दिस इज व्हाट आई स्टैंड अप फॉर, दिस इज वेयर वी हैव टू गो, दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू चेज. तो वो एक कॉज को पकड़ता है, एक विजन को पकड़ता है और उसमें क्लैरिटी देता है. दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. फिर उस क्लियर विजन को सबके साथ शेयर करता है. तो ही ब्रिंग्स इन क्लैरिटी कि कहां जाना है, क्योंकि उसको दिखता है, वो चीज दिख रही है उसको जो बाकी फॉलोअर्स को नहीं दिख रही है. सो अ लीडर हैज टू हैव क्लैरिटी ऑफ वेयर ही वांट्स टू गो, and that clarity which he has, he should be able to share with his team with as much of emotional involvement as he is experiencing. कि वो कहता है कि यार I want to reach out to so many customers. For example, you're into manufacturing and you have a presence in Maharashtra and you want to expand to all over India, or let's say for the next 3 years you want to expand down South India. तो साउथ इंडिया में आप एक्सपैंड करने की सोच रहे हो, तो आपके अंदर जो जज्बा, आपके अंदर जो एक 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 इमोशनल एक
वो बोलते हैं ना कि स्टॉर्म आया हुआ है कि यार आई वांट द कंपनीज प्रोडक्ट्स टू बी देयर इन द साउथ सदर्न मार्केट बिकॉज आवर प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेरी वेल हियर एंड आई फील द कस्टमर्स कैन बेनिफिट कि हमारे प्रोडक्ट्स अगर कस्टमर्स यूज करेंगे देयर प्रोडक्टिविटी विल बी हाई एंड देन दे विल बेनिफिट फ्रॉम अ प्रोडक्ट्स। तो आप जितने इन्वॉल्व हैं इस थॉट में, जितने इमोशनल है इस थॉट को लेके कि हमारे प्रोडक्ट्स सब जगह होने चाहिए, वो इन्वॉल्वमेंट, वो इमोशंस should be passed on to your team members. So that your vision, which is there, that I want to expand to southern market in the next 3 to 5 years, becomes the vision of the team. It becomes the vision of the team. So you have a clear vision and you have a shared vision. तो ये फंक्शन है लीडरशिप का। तो ये पहला फंक्शन लीडरशिप का। दूसरा फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन क्लियर vision, and that vision is shared with everybody with the same kind of emotional connect as it was with the leader. Second function of leadership is अब उस vision के प्रति कमिटमेंट लाना है, उस विजन के प्रति हमने लोगों को भागने को लगाना है। तो कैन वी क्रिएट, कैन वी सेल, कैन वी मेक अ टीम promise a commitment to have a rigorous pursuit, to have a जबरदस्त एक पीछा करेंगे उस विजन का। क्योंकि विजन जो है ना, छोटा विजन नहीं है कि साउथ इंडियन मार्केट को अगर हमने कैप्चर करना है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? इट कैन बी एनी अदर विजन। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी हियर, दो मनी इज अ वे बाय व्हिच यू मेजर that how much you have gone, but that is not what we are chasing कि हम 50 करोड़ से हम 100 करोड़ पे जाएंगे। तो 100 करोड़ is not what we are chasing. We are at 100 crores and we want to go to 200 crores. वो that 200 is not what we are chasing. वो 100 से 200 जो हम करेंगे उसमें हम नए मार्केट्स में जाएंगे, उसमें हम नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, उसमें हम नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, उसमें हम नया कुछ करेंगे, उससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, उससे हम और अच्छी टीम बनाएंगे, उससे हम और अच्छे अच्छे लोग लेके आएंगे। तो that is what will happen from 100 to 200 crores. That's the reason why we are chasing 200 crores. तो 200 करोड़ मेजर करना आसान है, इसलिए हम 200 करोड़ की बात करेंगे, बट हम वो चेज नहीं कर रहे हैं। That is an outcome. That's an outcome of we acquiring so many customers. So you say today we have 100 customers, we would like to make it 200 customers. And that is what we are chasing. तो तुम्हें मालूम है कि 100 कस्टमर लाने में बड़ी जान गई, ये 200 कस्टमर्स को हम और बिल्ड करेंगे, या हम 100 कस्टमर्स को और बिल्ड करेंगे इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, क्योंकि 100 हमने बिल्ड किए हैं पिछले 10 साल में, 15 साल में। अब हम नेक्स्ट 3 इयर्स में बात कर रहे हैं कि हम और 100 लेके आएंगे। तो जो हमने 15 साल में बिल्ड किया उसको हम 3 साल में बिल्ड करने की बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। इसके लिए एक ह्यूमंगस एफर्ट लगेगा, इसके लिए अलग जज्बा लगेगा, इसके लिए एक अलग लेवल ऑफ कमिटमेंट लगेगा, इसके लिए एक जबरदस्त परस्यूट लगेगा। तो क्या मैं वो एज अ लीडर, क्या मैं लोगों के अंदर वो कमिटमेंट क्रिएट कर पा रहा हूं उस जर्नी के प्रति, उस परस्यूट के प्रति? क्या मैं एक कमिटमेंट क्रिएट कर पा रहा हूं? दैट्स अ सेकंड फंक्शन ऑफ लीडरशिप। तो पहला है एक बढ़िया सा विजन जो साफ हो, हेजी ना हो। दूसरा उसी का सब पार्ट है, क्या मैं वो विजन शेयर कर पा रहा हूं? क्या लोगों ने कहा हाँ हाँ बात तो सही है, हमें भी दिख रहा है सर जो आप दिखा रहे हैं, वी कैन सी। सो यू डोंट टेल द विजन, यू मेक पीपल सी द विजन, दैट इज कॉल्ड शेयर्ड विजन। मैं दोबारा बोलता हूं, यू डोंट टेल द विजन टू पीपल, यू मेक पीपल सी द विजन। एंड सीइंग का मतलब क्या है? आप उनको अपने साथ ट्रांस में ले गए, आप अपने साथ उनको उस जर्नी में ले गए, एंड दे स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। आप अपने इमोशंस उन तक ले गए, एंड दे आर आल्सो फीलिंग द सेम कि हाँ ऐसा हो जाएगा सर तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। दिस मींस नाउ दे आर सीइंग व्हाट यू आर मेकिंग देम सी। दैट्स वन पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ लीडरशिप। द सेकंड पार्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज you have to make them commit to the pursuit of that vision. उसके प्रति आपने उनको, उनके अंदर एक जबरदस्त डेडिकेशन क्रिएट करना है, जबरदस्त कमिटमेंट क्रिएट करना है कि हम ये विजन को पूरा करेंगे। दैट इज अ फंक्शन ऑफ लीडरशिप। अगर आपने ये दो चीज कर दी, दिस मीन्स यू हैव कंप्लीटेड द फंक्शन ऑफ लीडरशिप। आपने लीडरशिप का मकसद, लीडरशिप का काम कर दिया। सेकेंड पार्ट इज हाउ यू एग्जीक्यूट दिस। ये आप कैसे करते हो? तो उसके लिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लीडरशिप के, बहुत सारे स्टाइल्स हैं लीडरशिप की। मैं आऊंगा कभी उसमें आगे जाके कि क्या कौन से स्टाइल से कैसे आप लीड कर सकते हो।
बट अभी तो आप सिर्फ ये समझो कि लीडरशिप जो है कितना जरूरी है। सेकंड, आप ये समझो कि लीडरशिप का काम क्या है। तो आप अगर लीडर हो और आप मुझे सुन रहे हो, चाहे आप डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हो, चाहे आप कंपनी को लीड कर रहे हो, राइट, चाहे आप किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हो, चाहे आप किसी क्लब को लीड कर रहे हो, यू गोट आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द फंक्शन व्हिच आई हैव। और जब ये लीडरशिप का फंक्शन समझ नहीं आता ना हमें, तो हम अपनी पोजीशन से लीड करते हैं, हम अपने कुर्सी से लीड करते हैं, and that is not leadership. And that's what I'm going to speak about next week to you, that what is not leadership and what exactly is leadership. तो leadership की definition क्या है, हम उसमें आएंगे next week. But आज सिर्फ इतना ही समझो आप कि अगर मैं लीड कर रहा हूं, अगर मैं मतलब आपसे बात कर रहा हूं कि अगर आप लीड कर रहे हो कोई भी पोजीशन को, किसी भी लेवल पे आप लीड कर रहे हो, सो अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ लीडरशिप। द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज यू हैव अ विजन वेयर योर डिपार्टमेंट विल बी, where your organization will be a time from now. And are you excited about that? क्या आप उस विजन के बारे में एक्साइटेड हैं? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, this is worth going to? Are you somewhere, getting that emotional high of thinking about that vision? तो ये first part of the function of vision. Second part is you bringing that same emotion which you are experiencing and you make people see that vision and experience the same emotion. And यहीं पर बड़ी मारामारी हो जाती है कि बहुत सारे लीडर्स यहीं फेल हो जाते हैं। उनको दिखता है कुछ, बट वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, उसको वो वहां तक उस फ्लेवर को, उस इमोशन को वो अपनी टीम तक लेके जा नहीं पाते। तो टीम फिर क्या होता है, अच्छा बॉस ने बोला है चलो करना है तो करना है, एंड दैट्स वेयर लीडर्स मिस आउट। सो यू सी समथिंग एंड यू आर सेइंग वाओ दिस इज ऑसम, ये तो मुझे करना है, ये तो हमें करना चाहिए, और आप वो जो इमोशन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, वही इमोशन आप लेके आते हो अपनी टीम पे, एंड इट बिकम्स अ शेयर्ड विजन। वो भी कहते हैं सर हमें करना है, एंड देन यू आर एबल टू कंटिन्यूअसली क्रिएट दैट कमिटमेंट। उनके अंदर लगातार वो जज्बा, लगातार वो कमिटमेंट, लगातार वो एक पीछा करने का, उस विजन की ओर जाने का आप उनके अंदर आग बरकरार रखते हो। तो ये दो चीज को बोलते हैं लीडरशिप का फंक्शन। सो this is what leadership is. A question I have, whether the saying he's a born leader or not, is it true? It is true and it is false. दोनों चीजें हैं आरसू इसमें। आपने पूछा कि लीडर्स आर लीडर्स born, ये बात सही है कि नहीं है? See, everybody is born with the capability, with the potential of becoming a leader. Now, whether he or she becomes a leader or not, that's a different question. तो क्या हार्डवेयर में पॉसिबिलिटी है? हाँ है। हर एक इंसान जो पैदा होता है हार्डवेयर वाइज, ही और शी इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ लीडर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लीडरशिप का सॉफ्टवेयर नहीं डालता तो वो लीडर नहीं बन पाता। तो इन अ वे नॉट एवरीबडी बिकम्स अ लीडर। कैन एवरीबडी बिकम अ लीडर? यस, बट डज एवरीबडी बिकम अ लीडर? नो। दैट इज माय आंसर टू इट। So this brings us to the end for today's small, that's what 30 minutes are there every week for MG Live on Business. तो आज सिर्फ इतना ध्यान रखो, मैंने आपको बिल्डअप किया द एंटायर सिनेरियो ऑफ व्हाट is the impact of leadership on small and medium scale enterprises. ये आप ध्यान से इसको ध्यान रखो इस बात का कि जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उतना इम्पैक्ट लीडरशिप का ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। आप कितने भी काबिल हो ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज, एग्जीक्यूशन वाइज, लेकिन लीडरशिप कमजोर है तो आप कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे, आप लंबे समय तक नहीं चल पाओगे। आपकी अमीरी टर्नओवर वाइज नहीं होनी चाहिए, आपकी अमीरी लीडरशिप पोजीशन में कितने अच्छे लोग बैठे हैं उस पर डिपेंड करती है। राइट? फिर मैंने आपसे बात करी कि लीडरशिप जो है वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी है तो नीचे ऑर्गेनाइजेशन में उसका बड़ा जबरदस्त रिपल इफेक्ट होता है, अगर अच्छी नहीं है उसका भी रिपल इफेक्ट होता है। Right? Then I also spoke to you about the very fact that your job is to ensure that you are able to create that emotion which you're experiencing in the minds, in the hearts of people whom you're leading. If you want to touch their hearts, your heart has got to be touched before. If you want to convince them, you got to be convinced to 10 times more degree than what you have to convince them. अगर इस लेवल का है तो आप लीडरशिप में अच्छे ढंग से आप लीडरशिप को कर पाओगे। And then I went on to make you understand
कि लीडरशिप का फंक्शन क्या है. सो क्लियर विजन, शेयर्ड विजन एंड एक लोगों के अंदर एक कमिटमेंट की आग कि उस विजन के पीछे भागते रहें, क्योंकि विजन छोटा नहीं है, विजन बड़ा है, विशाल है. तो जितना बड़ा विजन होगा उतने चैलेंजेस आते हैं, जितने चैलेंजेस आते हैं उतने लीडर को उस चैलेंजेस को पार करने की आग अपनी टीम के अंदर लगानी पड़ती है. सो दैट इज कॉल्ड अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द परस्यूट ऑफ अ विजन. वो आपने करते रहना है. दैट इज द फंक्शन ऑफ विजन. I'll see you next week with the next episode of leadership, and I'll share with you what is leadership, and I'll also share with you a few attributes of leaders. कि लीडर के अंदर क्या मस्ट एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. ये तो होने चाहिए, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आप आईटी फील्ड से हो, आप सोशल बैकग्राउंड से हो, आप यू आर लीडिंग एन एनजीओ, यू आर लीडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, यू लीडिंग अ क्लब, लेकिन आप कहीं भी लीडरशिप पोजीशन में हो तो कुछ 2-3 आपके पास एट्रीब्यूट्स होने चाहिए. वो आपसे मैं नेक्स्ट वीक शेयर करूंगा कि वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं. सो एज ऑफ नाउ, stay happy, stay charged, and take up leadership positions as much as you can. And I'll see you for Happy Minds on Saturday morning at 7 o'clock. Namaste, everybody. Thank you, Rishi. God bless you all. And do spread the word around. Do ask people to like this channel, subscribe to this channel so we can reach out to more people on the business side. God bless you. And let's have as many as possible on MG Live on Business. Thank you so much. Thank you. God bless Pradeep, Raghavendra, Chanchal, Avinash, Rishi, Chandrakant, Kedar. God bless you all. Chaliye. Namaste, everybody. And do have your questions ready next week. And let me see if I can handle your questions. Chaliye. Bye-bye.